अगर आपकी लाइफ में भी किसी ने आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को मैनिपुलेट करके आपको गुमराह करने की कोशिश की होगी, देन आई गारंटी यू उसने आज डिस्कस की जाने वाली टेक्निक ही आपके ऊपर इस्तेमाल की होगी। आयुष एक यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जो अपना मैक्सिमम टाइम यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसी एप्स पर स्पेंड करता है। इन एप्स पर कंटेंट कंज्यूम करते वक्त ही कम अक्रॉस मैनी पेड एज वेल एज स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम वो उन एड्स को स्किप कर देता है, लेकिन कभी कभी ही फाउंड सर्टेन एड्स जिसमें स्पीकर्स ये दावा कर रहे होते हैं कि उनका ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड करने के बाद काफी सारे लोग अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं। Pallavi, you joined Passionpreneur. Yes. It has been how many months? Over 6 months. 6 months. Yes. Okay. Have you monetized your passion? Yes, definitely. Wow. How long did it take? Just 2 months. Just 2 months. He was able to cross More than 1 crore in 11 months by launching his online course. आयुष ये सब सुन के काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर इन लोगों की तरह वो भी इस वर्कशॉप की मदद से इतनी छोटी उम्र में मिलियंस कमाने लगा तो फिर तो उसे जॉब करने की जरूरत ही नहीं। With such intentions, one day he made a decision to participate in one such workshop whose ads he saw most often. उसने वर्कशॉप में रजिस्टर करने के लिए फीस पे की एंड स्टार्टेड कंज्यूमिंग द कंटेंट। लेकिन काफी जल्दी ही वो उस वर्कशॉप से डिसअपॉइंट हो गया। He didn't find much value in that and hence he eventually dropped out of it without completing it. आयुष की तरह हम सब अपने डे टू डे लाइफ में काफी बार ऐसी एड्स के एक्सपोजर में आते हैं where the speaker is trying to influence us for buying his course. While some of the speakers in such ads are genuinely trying to sell valuable course by showing their genuine past experiences and legitimate achievements, but most of the time you will see a community of speakers which are trying to deceive you by selling their cheap online course or workshop through their charming materialistic lifestyle. ऐसी एड्स हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को मैनिपुलेट करने का काम करती है, where we end up buying the speaker's course or product without doing any rational thinking about whether we genuinely need their course or not. This becomes more scary when such ads are shown to teenagers who are very easy to get deceived by them. And the worst part is, you can't sue them in court for packaging their ads in such vicious way. which means you convert your business into cash making machine. Ching. So whom to blame for playing such manipulated game with us? अगर आप गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को ऐसी डिसीविंग एड्स दिखाने की वजह से इस प्रॉब्लम का कल्प्रिट मानते हैं, then you are avoiding the main villain of this deception game. ये डिसेप्शन गेम हमारे साथ कई जनरेशन से खेला जा रहा है, जहाँ कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग अपने शब्दों और लाइफस्टाइल से हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बॉस, मैनेजर, मोटिवेशनल गुरु, मेंटोर, इन्फ्लुएंसर, पॉलिटिशियंस और रिलीजियस गुरु भी हो सकते हैं whose words make you feel that yes, what they are speaking is absolutely true and you blindly follow their words. कभी-कभी इनके शब्द इतने पावरफुल होते हैं that it feels irrelevant to think logically whether their views, advice, courses or product has anything to do with us or not. So the question is how to save ourselves or our younger beings from getting manipulated from such type of personalities or ads which we find quite often in front of our eyes. Can we make a sound decision of buying or not buying their advice, ideas or product without falling in their excellent speaking or marketing trap? आज मनुष्य अकेडमी के वीडियो में हम आपके सामने वो सभी ट्रिक्स रिवील करेंगे जिसकी मदद से आप अपने आप को किसी भी प्रकार का धोखा खाने से बचा सकते हैं। सो क्या आप तैयार हैं अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को एनहांस करने के लिए? सारा एक ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लड़की है जिसे उसके क्लास में सब द स्मार्टेस्ट गर्ल के नाम से जानते हैं। क्योंकि वो खूबसूरत और स्मार्ट दोनों हैं, कॉलेज के बॉयज हमेशा उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में रहते हैं, बट शी इज नॉट इम्प्रेस्ड बाय एनी ऑफ देम। और इसी वजह से सारा को इम्प्रेस करना कॉलेज में एक बिग अचीवमेंट की तरह देखा जाने लगा। एक दिन कार्तिक को अपने कॉलेज में चल रहे इस परसेप्शन के बारे में पता चला एंड ही डिसाइडेड टू इम्प्रेस सारा इन ऑर्डर टू लुक कूल इन द कॉलेज। कार्तिक ने दूसरे लड़कों की तरह अपने लुक्स, स्मार्टनेस और पैसों का शो ऑफ नहीं किया। रेदर ही फर्स्ट बिकेम हर फ्रेंड थ्रू अ कॉमन फ्रेंड एंड देन शोड अप इन फ्रंट ऑफ हर एवरी डे। वो अपनी नॉलेज हमेशा तब शेयर करता व्हेनेवर सारा और एनी अदर फ्रेंड फ्रॉम द ग्रुप आस्क्ड हिम एनीथिंग, और अपने रिसोर्सेज भी सारा के मांगने से ही उसे शेयर करता था। ही मेड श्योर दैट ही वाज ऑलवेज अवेलेबल व्हेनेवर सारा वांटेड हिज हेल्प। इन शॉर्ट, वो डेलिबरेटली हमेशा सारा की नजरों के सामने ही रहता इन बेस्ट पॉसिबल वे एंड दिस इज हाउ ही डेवलप अ बेटर चांस टू इम्प्रेस सारा इन कंपैरिजन टू एनी अदर रैंडम गाय इन द कॉलेज। नाउ
नाउ क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसी कौन सी ट्रिक कार्तिक ने यूज की विच इंक्रीज हिज चांसेस ऑफ इम्प्रेसिंग सारा इन कंपैरिजन टू अदर बॉयज? कार्तिक यूज्ड अ ट्रिक विच रिसर्चर्स कॉल्ड मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। मेयर एक्सपोजर इफेक्ट में एक आइडिया और पर्सनैलिटी और प्रोडक्ट को बार बार टारगेटेड ऑडियंस के सामने अलग अलग तरीके से एक्सपोज किया जाता है सो दैट ऑडियंस स्लोली स्टार्ट प्रेफरिंग दैट पर्टिकुलर आइडिया, पर्सनैलिटी और प्रोडक्ट इन कंपैरिजन टू एनी अदर रैंडम अननोन अल्टरनेटिव्स। इस इफेक्ट को पॉलिटिकल पार्टीज, इन्फ्लुएंसर, कोचेज और ब्रांड काफी बार यूज करते हैं वेयर दे एक्सपोज देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ देयर ऑडियंस फ्रीक्वेंटली इन डिफरेंट वे एंड हेंस क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर देम इन देयर ऑडियंस माइंड। इस एक्सपोजर की वजह से लोग हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं वेयर वी एंड अप बाइंग देयर आइडियाज, प्रोडक्ट और कोर्स विदाउट कंपेयरिंग देम विद एनी अदर रिस्पेक्टिव अल्टरनेटिव्स। हम इस इफेक्ट की वजह से उन न्यू अल्टरनेटिव्स को कंसीडर ही नहीं करते विच आर मोर बेनिफिशियल देन द एक्सपोज्ड वंस। नाउ यू विल आस्क, हम ऐसा क्यों रिएक्ट करते हैं? The answer is हम इंसानों की बनावट ही ऐसी है कि we react very carefully around things which are new to us। लेकिन जब वही आइडिया, प्रोडक्ट और पर्सनैलिटी बार बार हमारे सामने आती रहती है, हमें ये श्योरिटी मिल जाती है that they will not cause any danger to us and are the safest option to consider। So next time जब आप ऐसे किसी आइडिया, प्रोडक्ट और पर्सनैलिटी के मैसेज को फैक्ट मान के कोई डिसीजन लेने जा रहे हो, at that time ask yourself this warning question: Am I believing in this piece of information because it really has a competitive advantage, or I am believing in it because it was consistently exposed to me? अक्षय एक इंजीनियरिंग कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है हु इज वेरी एम्बिशियस। वो एक अच्छी कंपनी में हाई पैकेज सैलरी वाली जॉब करने की इच्छा रखता है, लेकिन अक्षय की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ही शाय पर्सन है एंड हेंस ही फील्स ऑकवर्ड टू स्पीक टू अननोन पीपल। वो हमेशा अपने सेम सेलेक्टिव क्लास के दोस्तों से ही बात करता है। उसे अपने प्रोफेसर्स और कॉलेज सीनियर्स के साथ अपना नेटवर्क बनाना है, बट उसमें भी उसे शर्म आती है। उसे डर है कि वो सभी उसकी बातें सुन के उसका मजाक ना उड़ाए। So in this fear, he failed to develop any network with people outside of his scope. Akshay का decision to always choose his default option of not approaching to unknown people is what researchers called status quo. Status quo bias एक ऐसा cognitive bias है where people prefer to stay in the same default state. Engaging in status quo bias is a sign that हम ऐसा कोई भी decision लेने में interested नहीं है which involves change in our current state of living. People in such state refuse to make decision based on sound reasoning. इसकी वजह से वो कभी कभी ऐसी choices prefer कर लेते हैं that aren't in their best interest. In short, इस केस में हमारा एक्शन ही कोई न्यू एक्शन ना लेना बन जाता है, even if the new action is more advantageous response. सोशल साइकोलॉजिस्ट ने ऐसे काफी एक्सप्लेनेशन दिए हैं which states why status bias exists in the first place. उसमें सबसे प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट है the concept of loss aversion. ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। लॉस एवर्जन एक ऐसा बिहेवियरल कॉन्सेप्ट है जहां हमें किसी भी न्यू काम को फेस करने का साइकोलॉजिकल पेन इतना बड़ा लगने लगता है कि हम उस काम से मिलने वाले गेन के बारे में सोचते ही नहीं। इसकी वजह से हम ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेते जो हमें किसी भी प्रकार के लॉस, इंसल्ट, फेलियर का पेन दे। जब भी हम स्टेटस को बायस से इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन लेते हैं, हम हमेशा गिवन ऑप्शन में से फेमिलियर ऑप्शन ही चूज करते हैं बिकॉज वी नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। टू चूज द अल्टरनेटिव ऑन द अदर हैंड इज कंसिडर्ड एज अ बिग रिस्क हुज आउटकम कैन टर्न आउट टू बी नेगेटिव। हम अल्टरनेटिव ऑप्शन को चूज करने से मिलने वाले पॉसिबल आउटकम के बारे में एक बार भी नहीं सोचते। वैसे तो स्टेटस को बायस हमें इन्फ्लुएंस करता है टू टेक पुअर डिसीजन, हाउएवर इट कैन बी वेरी इफेक्टिव टूल इन टेकिंग क्विक डिसीजंस व्हाइल एग्जीक्यूटिंग डेली रिपीटेटिव टास्क। रूटीन लाइफ में हमें कौन से कपड़े पहनने हैं या कॉलेज जाने के लिए कौन सा रूट सेलेक्ट करना है, कुछ ऐसे रिपीटेटिव डिसीजन हैं जो हम रोज लेते हैं एंड स्टेटस को बायस ऐसे डिसीजन लेने में हमारी काफी मदद कर सकता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग आवर डिसीजन मेकिंग टाइम एंड सेविंग आवर माइंड एनर्जी व्हिच वी कैन यूज फॉर मेकिंग मोर इंपॉर्टेंट डिसीजंस। Hence, categorizing decisions as repetitive or challenging will help you to decide whether you have to use your status quo bias or not. Ram एक 12th pass average student है whose goal is to get high paying job. For this, he is looking to join an engineering college जो उसे अच्छा प्लेसमेंट दिला सके। One day he come across an ad जिसमें पर्टिकुलर कॉलेज अपने स्टूडेंट को 100% प्लेसमेंट देने की बात कर रहा था। राम उनका कमिटमेंट सुन के थोड़ा क्यूरियस हो गया और उसने कॉलेज की वेबसाइट पे चेक किया। He was thrilled to see the big placement salary figures there. वो उस कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आने वाली कंपनीज की लिस्ट देख के इतना इंस्पायर्ड हो गया दैट ही इंसिस्टेड हिज पेरेंट कि उसे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। दो उस कॉलेज की फीस कंपैरेटिवली दूसरे कॉलेजेस से हाई थी, लेकिन आफ्टर सेवरल इफ्स एंड बट्स राम फाइनली मैनेजेस टू गेट एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही उसे कॉलेज के सीनियर्स से उस कॉलेज की कुछ फ्रॉड केसेस के बारे में पता चला वेयर द कैंडिडेट डिडंट रिसीव एनी ऑफर लेटर फ्रॉम द कंपनीज इन विच दे वर सिलेक्टेड। राम को बहुत ही लेट रियलाइज हुआ कि प्लेसमेंट वर मिथ इन दैट कॉलेज। उसके सीनियर्स ने उसे ऐसी ऐसी स्टोरीज
चीजें बताई which made him terrified. He discovered that not everyone enrolled in the program was allowed to join the placement process, and on top of it, well-known companies didn't even come to their campus. Now Ram felt that he was betrayed by the college authority. हम में से काफी स्टूडेंट को इसी तरह एडमिशन के समय काफी सारे कॉलेजेस हाई सैलरी प्लेसमेंट और स्ट्रेट पाथ टू सक्सेस दिखा के उनका कॉलेज ज्वाइन करने को इन्फ्लुएंस करते हैं, और हम भी उनकी बातों में आके उनका कॉलेज ज्वाइन करने का डिसीजन बना लेते हैं। सिर्फ कॉलेज सिलेक्शन में ही नहीं, हमें नॉर्मल लाइफ में भी काफी बार लोग बड़े बड़े गोल्स दिखा के रॉन्ग डिसीजन लेने को मजबूर कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हम क्यों लोगों की बड़ी बड़ी बातों में आके गलत डिसीजन लेने को इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? We take such decision because we are being manipulated by a trick which researchers call a tunnel vision. जिसमें आप सिर्फ 3 दिन में अपने ऑनलाइन करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। What if you are able to take charge of your career without feeling the pressure and it takes only 5 steps? टनल विजन में लोग डेलिबरेटली हमें फोर्स करते हैं एक ऐसे पॉजिटिव आउटकम के ऊपर फोकस करने को विदाउट कंसिडरिंग एनी ब्रॉडर पिक्चर और सर्कमस्टेंसेस, एंड हेंस वी फॉल इन देयर ट्रैप विदाउट डूइंग एनी रैशनल थिंकिंग। नाउ आप सोच रहे होंगे ऐसे फेक कमिटमेंट पर लोग भरोसा कैसे कर लेते हैं? डोंट दे हैव अ कॉमन सेंस? फॉर दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी। इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हम सब अपनी लाइफ की रेस में जीतना चाहते हैं। इनफैक्ट आवर नीड टू विन इज द एग्जैक्ट कॉज व्हाई वी बिकम विक्टिम ऑफ सच टनल विजन। टनल विजन एग्जिस्ट इसलिए करता है बिकॉज वी ऑल हैव अ डिजायर टू विन द रेस टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। हम में से कोई भी टनल विजन की वजह से गलत डिसीजन लेने के लिए इन्फ्लुएंस हो सकता है। द कॉमन साइन टू फाइंड आउट वेदर वी आर विक्टिम ऑफ टनल विजन आर अपने गोल्स में इतना फोकस हो जाना दैट वी एंड अप अवॉइडिंग ऑल पेरिफेरल वार्निंग साइंस एंड एडवाइस अराउंड अस। द सेकंड साइन ऑफ टनल विजन इज इरिटेशन शो करना व्हेनेवर एनीवन और एनीथिंग इंटरप्ट आवर फोकस। द थर्ड साइन इज बीइंग टू रिजिड और अनविलिंग टू एक्सेप्ट सजेशन टू चेंज आवर एक्शन प्लान। दूसरों की मदद ना लेना इवन इफ इट मे लाइटन आवर वर्कलोड इज द फोर्थ साइन ऑफ टनल विजन। बीइंग रिलक्टेंट टू टेक ब्रेक फ्रॉम आवर वर्क और बीइंग कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस इज आल्सो द साइन ऑफ टनल विजन। So अब आपको पता है what is tunnel vision and what are its sign. The next thing that we need to understand is how not to become a victim of tunnel vision. इसके लिए सबसे पहली प्रैक्टिस जो आप फॉलो कर सकते हैं वो है while making conscious decision in a respective area of interest, keep scanning the environment and ask yourself what am I missing here. Regular what and how type क्वेश्चन पूछने की हैबिट एक इफेक्टिव मेजर है to deal with tunnel vision. हर्षद एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है who wants to learn stock market investment. इसके लिए उसने ऑनलाइन गूगल पर सर्च करने की कोशिश की that what are the best online courses for stock market investment for beginners. As soon as he start searching, he came across many sources which were providing online courses. उसने नोटिस किया that some websites were giving special discount on courses if he buy the course as early as possible. अब हर्षद टेम्प्टेड फील करने लगा और उसे लगने लगा कि अगर उसने इस ऑफर को जाने दिया तो उसे पूरे कोर्स की ओरिजिनल कॉस्ट को बेयर करना पड़ेगा। आई एम श्योर आपकी लाइफ में आपने भी ऐसी सिचुएशन फेस की होगी where you are being tempted to take buying decision in limited time. ऐसी सिचुएशन में लेट डिसीजन लेना और डिसीजन ना लेना आपको एक बिग मॉनेटरी लॉस जैसा लगेगा जो आप फील नहीं करना चाहते, एंड हेंस यू मे एंड अप बाइंग दैट थिंग विदाउट इंक्वायरिंग वेदर इट्स अ फेयर डील और नॉट। आपको अपनी लाइफ में काफी लोग ये ट्रिक यूज करते दिखेंगे जिसे रिसर्चर्स मेयर अर्जेंसी इफेक्ट कहते हैं। इस ट्रिक में सामने वाला इंसान आपके डिसीजन लेते समय एक अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करेगा सो दैट यू डोंट गेट टाइम टू नेगोशिएट प्रॉपर्ली और गैदर इनफ इन्फॉर्मेशन विच मे हेल्प यू टू टेक साउंड डिसीजन। बट यू मे आस्क दैट व्हाई वी गेट ऑब्सेस्ड टू टेक डिसीजन इन सच अर्जेंसी इन द फर्स्ट प्लेस। The answer is लोग हमें उस ऑफर से रिलेटेड एक ऐसा लुक्रेटिव विजन दिखाते हैं which we think we can't afford to lose and hence forcing us to take quick decision by deliberately attaching a sense of urgency to it. बहुत सारे ब्रांड्स, ऑनलाइन गुरुज, इन्फ्लुएंसर्स, लोकल शॉपकीपर्स एंड HR इस ट्रिक को यूज करते हैं in order to deceive us. On the sign up button and take it right now because very soon I'm gonna stop doing it live. So the question is how to take sound decision in situation where we need to decide in limited time whether we should buy another person's offer, product, course or not. The first step that we must do in such situation is to categorize whether this situation is really an urgency or the other person has created a false urgency just by showing a limited time offer. बट हम ऐसी फॉल्स अर्जेंसी को इवेलुएट कैसे करेंगे? फॉल्स अर्जेंसी को इवेलुएट करने के लिए हम गिवन ऑफर, प्रोडक्ट और कोर्स को उसके रिलेटेड अल्टरनेटिव से कंपेयर कर सकते हैं प्रायर टेकिंग पार्ट इन दैट डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। दिस कैन बी इजिली डन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, जहां हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आर वी गेटिंग द सेम ऑफर एल्सवेयर, और हम किसी इंसान के साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं जिसे उस फील्ड की अच्छी नॉलेज हो। अगर सेम टाइप के ऑफर आपको दूसरी जगह भी मिल रहे हैं देन इट्स अ फॉल्स अर्जेंसी। आप आराम से अपना टाइम सारे अवेलेबल ऑप्शन को गेज करने में लगा सकते हैं और साथ ही साथ सामने वाले से नेगोशिएट भी कर सकते हैं टू फर्दर रीडिफाइन द टर्म्स। दिस विल हेल्प यू टू डिसाइड वेदर इट्स अ गुड डील और नॉट। नाउ सपोज आप एक ऐसी सिचुएशन में है वेयर यू हैव टू मेक अ क्विक डिसीजन इन कैटेगरी व्हिच इज एंटायरली न्यू टू यू। लेट्स से आप
एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जिसे रिमोटली सोशल मीडिया हैंडलर की प्रोफाइल के लिए एक जॉब ऑफर मिला है। दे हैव ऑफर्ड यू अ मंथली सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज। नाउ अब आपके पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे आप इस ऑफर के रिगार्डिंग कंसल्ट कर सके, नॉर यू हैव एनी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन टू कंपेयर वेदर दिस ऑफर इज फेयर और नॉट। आपको ऑफर का रिस्पॉन्स फटाफट 10 मिनट में देना है। नाउ व्हाट यू विल डू? अगर आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, देन आस्क योरसेल्फ दिस सिंपल क्वेश्चन, इज दिस वर्क रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू? मतलब क्या ये प्रपोजल जो आपको ऑफर किया गया है विल एड एनी वैल्यू इन योर लाइफ दैट मे हेल्प यू इन फ्यूचर? अगर आपका आंसर नो है, देन यू मे आस्क एक्स्ट्रा टाइम टू थिंक ओवर इट विदाउट वरिंग दैट यू विल मिस दिस अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर ये टास्क आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क है, देन आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो इन एक्सप्लोरिंग दिस अनसर्टन अपॉर्चुनिटी। शायद वो डिसीजन गलत भी निकले, लेकिन स्टिल यू विल अर्न एन एक्सपीरियंस दैट विल एड अ वैल्यूएबल इनसाइट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। सो दिस इज हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू डिसीजन which will require your quick response. With this, we have reached to the end of this video. आज हमने देखा how you can save yourself from getting deceived or from taking wrong decision. The trick that we discussed today were mere exposure effect, जिसमें लोग frequently available options को हमारे सामने expose करते हैं, ये believe कराने की कोशिश में that it is the best available option. The second effect that we discussed was the status quo bias, जिसमें हम by default वही options को choose करते हैं with which we are familiar and avoid taking decision that brings new action in our life. The third effect that we discussed was tunnel vision, जिसमें हम दूसरों की बड़ी बड़ी बातों में आके गलत डिसीजन ले लेते हैं। The last trick that we discussed was the mere urgency effect, जिसमें लोग हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं by creating a situation of urgency.